Hello, my dear kids. This is Chetan sir. Good morning, everybody. Hmm? So, this is lecture number 7, and the chapter is gravitation, whereas the chapter number is 8, and the physics belonging to NCERT class 11 physics. So, today's concept is 8.7 polar satellites, and this is beta series. So, my channel's name is Physics Indian Professor. ठीक है. So, let us start the class, my dear kids. तो क्लास को स्टार्ट करते हैं. सो बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स होते क्या हैं, उसी से स्टार्ट करेंगे. सो पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है. सो दिस इज पोलर सैटेलाइट्स, ठीक है. नाउ ये बेसिकली पोलर सैटेलाइट्स होते क्या है. these types of satellites revolve in the polar orbit. You should understand this. These are the satellites. These are the satellites revolves in a polar orbit. Okay. Now, my dear kids, listen up. So this is your what? This is your planet. ये आपका एक planet है. Okay. For example, this is Earth. ये क्या है? Earth है. Now, when you're making orbit, when you're showing orbit presence around the planet, ठीक है? ऐसे. तो ये orbit presence जो है ना, you can show like this. And the North Pole, South Pole, आपको कहाँ से दिखाना पड़ेगा? You need to show from here. So this is your North Pole, South Pole. ठीक है. So one planet is revolving यहाँ से ऐसे. Okay. This is North Pole. This is South Pole. If the planet is revolving from north to south, if the satellite is revolving from north to south around the planet Earth, ठीक है. तो जो भी सैटेलाइट है, अगर नॉर्थ टू साउथ पोल को रिवॉल्व करता है, बेसिकली दिस टाइप ऑफ ऑर्बिट इज कॉल्ड एज पोलर ऑर्बिट. ठीक है. बिकॉज दिस पाथ इज elongated, circled and circled from north to south. तो नॉर्थ से साउथ तक एनसर्कल्ड है ये. कौन सा? पोलर ऑर्बिट वाला पाथ. व्हेन द सैटेलाइट इज रिवॉल्विंग अराउंड इट, तो हम इसको क्या कहते हैं? पोलर सैटेलाइट्स कहते हैं ऐसे सैटेलाइट्स को. ठीक है. इज दिस क्लियर माय डियर किड्स? इज दिस क्लियर? कैन वी प्रोसीड? हम आगे बढ़ सकते हैं. यस. सिंपल दिस इज. ओके. बहुत ही सिंपल चीज है. ओके. नाउ ये सैटेलाइट्स कहां पे लोकेटेड रहते हैं? लोकेशन ऑफ सैटेलाइट्स ऑन एन एवरेज इन जनरल. लोकेशन ऑफ सच सैटेलाइट्स. तो इसका हम रेंज बता रहे हैं. क्या बता रहे हैं? वी आर टेलिंग आउट द रेंज ऑफ these satellites, where these satellites are located. ठीक है. These are the basically ये कैसे satellites है? Basically these are the low orbit satellites. मतलब बहुत ही निचले स्तर पर रहने वाले ऑर्बिट से ये रिवॉल्व करते हैं. These are the satellites. It will orbit to the planet at the lower heights. Lower heights कितना होता है? ठीक है. So इसीलिए इसको लोअर ऑर्बिट सैटेलाइट्स भी बोलते हैं, या लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स भी बोलते हैं. या लो ऑर्बिट कहने से अच्छा है, वी कैन यूज द टर्म लो ऑर्बिट. मतलब फिर से थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको हो जाएगा, और एल्स वी कैन से दैट लो अल्टीट्यूड सैटेलाइट्स. मतलब आपको पता चलेगा.
the height is very much smaller. तो इसका एक स्पेसिफिक रेंज बताएंगे. they are located they are located at height about 500 to 800 किलोमीटर. ठीक है. Are you getting my point? Means the range from the north pole up to this height is, it should be somewhere 500 to 800 किलोमीटर वाला रेंज होना चाहिए. ये मिनिमम इतना होना ही चाहिए. So to revolve that satellite around the planet, around the earth, तो हम उसको क्या कहते हैं? लो एल्टीट्यूड सैटेलाइट्स कहते हैं. इफ द सैटेलाइट्स आर रिलाइंग एट दिस हाइट्स, इससे ऊपर हो सकते हैं, इससे ऊपर हो सकते हैं, बट द चांसेस ऑफ फ्लीइंग फ्रॉम द ऑर्बिट, मतलब ऑर्बिट से वो निकल जाएगा, इससे ऊपर अगर होंगे तो हो सकता है. तो इसीलिए इतने कम हाइट पे रखे जाते हैं. एंड बाय कीपिंग दिस हाइट, these satellites can take the clear images at these particular heights of the surface of the earth, and it can make a rekhi of complete earth, because इसका combination होता है. combination of these satellites is with geostationary satellites. उसका एक क्या कहते हैं, एक formation बनाते हैं. formation, I don't remember the formation of other countries, but Indian formation is Gagan, probably Gagan. I don't remember that properly. वो भी 7 satellites का वो एक ये होता है, क्या कहते हैं, it's a structure of 7 satellites, some 4 to 5 polar satellites and 2 geostationary satellites, ऐसा कुछ combination होता है. तो उस combination से you can take clear picture of the earth, complete earth. ठीक है. So basically the purpose of using such type of combination of the structures of satellites, तो it is for military purpose, not for the civilian purpose. ठीक है. So Americans का 21 satellites का है, and Russians का है. That structure is called as GLONASS. Russians का GLONASS है, probably Indians का Gagan है. Gagan probably. And Americans का कुछ याद नहीं आ रहा है मुझे. Anyhow, but this is the basic knowledge regarding polar satellites. ठीक है. चलो. Now गगन है या नहीं मुझे थोड़ा सा याद नहीं है, देखेंगे. अगर गगन होगा तो होगा, नहीं बोले तो याद आया तो दूसरा नाम मैं आपको सजेस्ट करूंगा. ओके, विल सी दैट. ओके, आपको क्या फाइंड करना है? आई विल गिव वन होमवर्क टू यू. इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स का जो स्ट्रक्चर बनता है, या पोलर सैटेलाइट्स का स्ट्रक्चर बनता है, मिलिट्री सैटेलाइट्स का, जैसे रशियन का ग्लोनास है, इंडिया का नाम क्या है? मुझे तो याद है जितना, आई थिंक इट इज गगन, बट आपको अगर ढूंढने के बाद मिलेगा तो यू जस्ट सजेस्ट मी दैट इन द होमवर्क. ठीक है, दिस इज योर होमवर्क. ओके, एनीहाउ, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. ओके, इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स. सो बेसिकली इसका शॉर्ट फॉर्म जो है ना, IRS, वी यूज्ड टू कॉल दिस एज IRS. ठीक है. सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दीज सैटेलाइट्स? इंडियन रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट्स क्या होते हैं? बेसिकली दीज आर द पोलर सैटेलाइट्स. मैंने आपको बताया ना, these are the polar satellites which collects information from distance. So इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है पता है? If the resolution is
हैविंग हाई क्वालिटी पिक्चर्स, इसको स्पाई सैटेलाइट्स भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं इसको? स्पाई सैटेलाइट्स. स्पाइंग करना क्या होता है बताओ मुझे. व्हाट इज स्पाइंग? व्हाट इज स्पाइंग? ये आपका घर है, ठीक है, ये और एक कोई घर है. समझो कि आपके घर में कुछ चल रहा है, से फॉर एग्जांपल छोटा सा नोक झोंक, आपके पापा आपको डांट रहे हैं या आपके मम्मी पापा का कुछ नोक झोंक हो रहा है, थोड़ा सा लड़ाई हो रहा है या जो भी है. बाजू के घर में कोई होता है, कोई आंटी होती है, वो कान दे के बैठी होती है, लाइक व्हाट देयर इज गोइंग ऑन, ये घर में क्या चल रहा है, वो घर में क्या चल रहा है. दैट इज कॉल्ड स्पाइंग. या सीइंग लाइक अ थीफ. गेटिंग माय पॉइंट? सो दिस पर्सन इज स्पाइंग. क्या चल रहा है इस घर में, क्या चल रहा है. Collecting the information data. So this type of things, say for example, here is the this is a kind of negative set of mind, but this is related with the families, right? ये families से related है. Okay, this is related with the families. But when it comes to countries के related आते हैं, ठीक है. This is your country, say for example, ठीक है, ये आपका country है. Now this is your country. हाँ. So Pakistan is here. This is Pakistan. So basically, ISRO is somewhere here. आपका ISRO कहीं पे somewhere यहाँ पे है, ठीक है, यहाँ पे है. ISRO is situated here, Indian Space Research Organization, and you will be having military commands. This is Central Military Command. This is Eastern Theater. Eastern Theater means military command ही है ये भी, ठीक है. This is Northern Military Command. This is no, ये Western Command आता है. Sorry, this is not Eastern Theater. Western Theater of Military Command. Eastern Theater इधर आता है. Okay. And Southern Theater इधर आता है of Military Command. So basically televisions ऐसे बहुत सारे रखे हुए होते हैं, और यहाँ से इसरो यहाँ पे जो भी डाटा इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है फ्रॉम द स्पेस. से फॉर एग्जांपल हियर इज द सैटेलाइट. सो देयर इज अ ट्रूप मूवमेंट ऑफ पाकिस्तानी आर्मी. तो बॉर्डर पे बहुत ज्यादा है. चाइनीज आर्मी हैव केम इंट्रूडेड हियर, एंड बोथ पाकिस्तानी एंड चाइनीज आर्मी आर मेकिंग ड्रिल ऑफ आर्मी एक्सरसाइजेस. ओके. तो ये जो है ना सैटेलाइट, ये सारा चीज देखता है यहाँ से, क्योंकि ये ऐसे गुजरते रहता है फ्रॉम नॉर्दर्न टू सदर्न. पोलर सैटेलाइट्स, दिस इज कॉल्ड स्पाइंग सैटेलाइट्स. तो यहाँ से ये जो स्पाई करता है, दिस इज फॉर गुड यूज. यहाँ पे खाना फूसी नहीं होती है. यहाँ पे जैसे एक दूसरे के घर में होता है ना खाना फूसी, एक औरत दूसरे औरत को देख के बोलती है कि डोंट लॉफ. वन लेडी शी यूज्ड टू टेल, ए जी सुनो जी, बाजू के घर वाले कार लाए हैं, आप कब लाने वाले हो, लाइक दैट. ओके, मीन्स don't laugh. I can't make that mimic properly because it feels like awkward. So that is very awkward moment when spying one woman about another woman, one family about another family. That situation will be very awkward situation. मुझे हंसी आ रही है. I can't do that. Okay, मैं बता रहा हूँ आपको. But okay, but in the case of national security जब आती है ना, so you need to make a spying of other countries, क्योंकि हमको बॉर्डर को सेव करना है. If you want to save your border from the enemies, you need to be alert. 2 स्टेप आगे रहना पड़ेगा आपको. आर्मी means from the army point of view, from the military point of view, you need to be some 2 to 4 steps very much alert than enemies. अगर समझो कि उन्होंने एक्सरसाइज के अवज में, if they attack to our territory और हम लोग बैठे हैं ऐसे, they will kill our army men. So that is why you need to spy from the polar satellites. Basically these type of satellites are Indian remote sensing satellites. ये हमारा है इसलिए हमने इंडियन बोला है. तो ये remote sensing satellites होते हैं. So these remote sensing satellites will be having capability of taking clear pictures of this mobile. Okay,
Why? Because uh, in the 1999 कारगिल वॉर जब हुआ था, ठीक है, कारगिल वॉर, इजराइल इजराइल इट हैज, इजराइल एक देश है, it has helped us, uh, the polar satellites of Israel, the spying satellites of Israel, they have captured the images of Pakistani army of having clear picture of the bodies near about 2.5 meter. So 2.5 मीटर के जो भी ऑब्जेक्ट्स थे उसके क्लियर पिक्चर्स इसराइल ने कैप्चर करे, क्लियर वीडियोस they have recorded and send it back to the which to the military command of India, because it is our friendly country. So they send us the whole things about Pakistan. So 2.5 मीटर at that time, मतलब स्काई से हम क्या देख रहे हैं, 2.5 मीटर लेंथी ऑब्जेक्ट वी कैन सी क्लियरली. Nowadays India is taking India is taking clear picture of 0.15 meter image. So this is the highest one. ऐसी टेक्नोलॉजी पूरी दुनिया में अमेरिका तक के पास नहीं है. Americans will be having clear pictures of 0.22 meter objects image, but Indians they are carrying 0.15 meter resolution pictures. तो इतने छोटे से ऑब्जेक्ट, इवन दो कार प्लेट नंबर इंडियंस कैन टेक क्लियरली. सो दैट इज व्हाई टेररिस्ट को कैसे पकड़ा जाता है, बाय हैविंग सच टाइप ऑफ सैटेलाइट्स, ऐसे पकड़ा जाता है. एंड even secret technologies have insisted with those satellites. It can encatch the voice, means voice recognition रहता है उसमें. Say for example, in this room some 4 to 5 terrorists are sitting and they are planning and they are saying that we are going to bomb this place, that place, और यहाँ पे हम लोग बातें कर रहे हैं ऐसे. So from the satellites it can encatch the sound, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी छोड़ता है और फ्रीक्वेंसी मैच करके वो वाला वॉइस एनकैच कर लेता है. सो दैट इज व्हाई countries like India, countries like USA, countries like Israel, countries like Russia, they are able to encatch the voice. They can spy from the home also. If terrorists from Pakistan they came to my home, say for example in Bijapur, the satellites can recognize the voice. यहाँ पे अगर बातें चल रही है तो उस बंदे का मूवमेंट पाकिस्तान से यहाँ पे हुआ है. So that is why security agencies they are able to manage the tracking location of the terrorists. तो इसीलिए बोला जाता है कि दिल्ली में 4 टेररिस्ट घुसे हुए हैं. You know what, this is true. अभी पता चला कैसे फाइंड करते हैं, because of Indian, not only Indian but remote sensing satellites. Is this clear my dear kids? Basically in the satellites ये चीज यूज करते हैं, सेंसर्स. ये टेक्नोलॉजी आप लोगों को पता है या नहीं पता नहीं. दिस इज नॉट propagated everywhere in कहते हैं ना इन ऑल डोमेन्स. सभी डोमेन्स में इसको ओपनली नहीं रखा जाता. इट इज केप्ट सीक्रेट. सिंस आई एम अ फिजिक्स लेक्चरर आई नो द यूसेज ऑफ दीज थिंग्स. जिसने फिजिक्स प्रॉपरली पढ़ा हो उनको ये सारी चीजें पता रहती हैं, और जिनको फिजिक्स थोड़ा 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 समझ ले, मींस लाइक इफ दे हैव नॉट अंडरस्टूड प्रॉपरली दे विल थिंक दैट अरे यार वॉइस को कौन रिकॉग्नाइज करता है. समवेयर फ्रॉम द पाकिस्तान इफ सम पर्सन केम हियर and satellite is tracking the voice of that person by matching frequency, how it is possible sir? What you're telling sir, is that true? ऐसा थोड़ी हो सकता है सर. You know my dear kids, you know bat पता है, क्रिकेट वाला नहीं, बर्ड होता है ना, नॉट क्रिकेट. या इसकी क्वालिटी क्या है बताओ मुझे. इन द डे टाइम और नाइट टाइम इसकी विजिबिलिटी जाती है. इन द डे टाइम और नाइट टाइम, टेल मी क्विक से. इज दैट नाइट टाइम? या. सो हाउ इट flies, tell me how it flies. कुछ आइडिया है? ये आपका बैट है, ठीक है, दिस इज योर बैट, ठीक है. सो ये पहले चिल्लाता है जोर से,
चिल्लाता है जोर से, ठीक है, उड़ने से पहले, या वेरी गुड। फिर कोई अगर वॉल है यहाँ पे अगर कोई ऑब्स्टेकल है, इट विल रिकॉग्नाइज दैट बाय सेंडिंग साउंड। तो यहाँ पे ऑब्स्टेकल है, उसको पता चल जाता है, तो ऐसे मोड़ जाता है, मींस इट विल नॉट बी गोइंग टू कोलाइड विद दिस वॉल, घूम के आ जाता है, मींस इट कैन रिकॉग्नाइज द ऑब्स्टेकल्स विद इट्स साउंड फ्रीक्वेंसी। सो द सेम वे सेंसर्स नाम की चीज होती है, ठीक है। सेंसर्स बहुत तरह के होते हैं, लाइट सेंसर्स होते हैं, साउंड सेंसर्स होते हैं, बहुत तरह के सेंसर्स होते हैं, रेडियो सेंसर्स होते हैं। So these sensors will be fitted at the satellites. So these sensors can recognize the voices. मेरी बात कुछ समझ में आ रही है? So these technologies, active sensors, passive sensors, ऐसे बहुत सारे sensors होते हैं। Interesting लग रहा है? By hearing all these things, क्या interesting लग रहा है आपको? Yeah, sir, if we talk more about bombs, अगर हम बॉम्ब्स के बारे में बात करें तो क्या इंटेलिजेंस एजेंसीज जो होती हैं, इंटेलिजेंस एजेंसीज, द ऑफिसर्स ऑफ दीज एजेंसीज इज फिक्स्ड एट दीज सेंटर्स, इसरो के सेंटर्स होते हैं। तो उसको कौन ऑपरेट करता है? ये एनआईए, ठीक है, एनआईए करता है, फिर रॉ करता है। रॉ इज एक्सटर्नल एजेंसी। एक्सटर्नल एजेंसी क्या है? ये राइट एनालिसिस विंग, ठीक है। सर व्हाट इज एनआईए? इट इज नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसीज, ठीक है, नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी। और एक आता है इंटरनल एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो। और एक आता है सीबीआई, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इंटेलिजेंस इन्वेस्टिगेशन। और एक आता है सीआईडी, दिस इज स्टेट रन, मतलब कर्नाटका, महाराष्ट्र, उनका उनका अलग सीआईडी होता है। तो सीबीआई इज सेंट्रल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट माय डियर किड्स? इंटेलिजेंस ब्यूरो इज सेंट्रल, रॉ इज सेंट्रल, दिस इज इंटरनल, ये अंदर चलता है इसका, जो भी स्पाइंग करना है, मतलब जो गद्दार देश के अंदर बैठे हैं उनको ढूंढने के लिए। एंड द enemies who are sitting outside of our country, it can be find by raw as well as NIA. मतलब NIA, it is the interlink between raw and IB. तो मतलब ये दोनों के बीच में तालमेल बिठाता है NIA, means in between all agencies. Okay, anyhow, so if you say bomb, मतलब बहुत ज्यादा बॉम्ब के बारे में बात किया, तो आपको आके कोई नहीं पकड़ेगा। Why? Because आपका कोई हिस्ट्री नहीं है ऑफ हैविंग टेररिस्ट। बट अगर आपने बहुत बार फोन पे बॉम्ब वगैरह बोला, और एल्स सो मेनी awkward things against country, so these intelligence agencies may track your phone और आपको आके पकड़ेंगे, ठीक है। apart from this, sir, if we don't talk in the terms like bombs, sir, if we talk in code words क्या होते हैं? For example, for the bomb I will use डोली। डोली आ चुकी है, डोली को उधर भेजना है। So this also they will track. Why? Because terrorist voices ये सुपर कंप्यूटर्स में, सुपर कंप्यूटर्स, यू नो सुपर कंप्यूटर्स, इसमें डाटा फीडेड रहता है। एंड whenever the voices is tracked by the agencies, तो वो लोग सुपर कंप्यूटर से ऑपरेट करते रहते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं, जैसे ही वहां पे एक वॉइस डाला, तो आपके सारे जितने भी टेररिस्ट हैं वर्ल्ड के, सभीयों के साउंड वॉइसेस को ट्रैक किया जाता है। मींस इट कैन बी ट्रैक्ड बाय द सुपर कंप्यूटर्स, सो दैट कैन ट्रेस द वॉइस, एंड वो अलर्ट कर देता है दिस टेररिस्ट केम फ्रॉम दैट प्लेस, सो वी नीड टू ट्रैक हिम आउट। तो उनके लिए एक जाल बिछाया जाता है, एंड दे विल गेट कॉट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यू कैन डू दीज थिंग्स। आप लोग करेंगे तो आप पे ज्यादा जल्दी से एकदम से अटैक नहीं होगा। एनीहाउ, बहुत ज्यादा हो गया ये। आई थिंक मुझे लगता है दिस इज नॉट नीडेड फॉर यू पीपल्स। इंटरेस्टिंग है, बट वी आर नॉट सीइंग एनी फिल्म। पैशनेट देता है ये सारा चीज, इट विल क्रिएट पैशन इन अवर ब्रेन, जस्ट लाइक एकता टाइगर मूवी था ना, वैसे। पैसिव सेंसर्स, बेसिकली पैसिव सेंसर्स क्या है? दीज आर द
polar satellites. What are these? These are polar satellites which detect natural radiation, either emitted or reflected from the earth's surface. Okay, see here my dear kids, polar satellites मतलब passive sensors किसको कहते हैं? These are the polar satellites which detect natural radiation. Natural radiation क्या होता है? हमारे voices either emitted, आप अर्थ सरफेस पे बैठे हो, एक टेररिस्ट बंदा बैठा है और ये बात कर रहा है, और रिफ्लेक्टेड. रिफ्लेक्टेड क्या है? ये बंदा बात कर रहा है ऐसे, दीवार पे आके रिफ्लेक्ट, किसी घर के दीवार पे लग के रिफ्लेक्ट हो रहा है. सो दीज कैन बी डिटेक्टेड बाय द सैटेलाइट्स. कैसे? ये अपने फ्रीक्वेंसी को भेजता है. सो व्हेन दिस मैचेस द वॉइस क्वालिटी ऑफ द टेररिस्ट, क्योंकि इस पे इसके अंदर डाटा फीडेड है. ओसामा बिन लादेन, से फॉर एग्जांपल ओसामा बिन लादेन वाज द टेररिस्ट. ओके, ये बंदा कहीं पे एबोटाबाद ऑफ पाकिस्तान, he is sitting somewhere and this is USA satellites. Okay, so इसके अंदर pre recorded data voice quality of the Osama bin Laden was there. So ये sound quality को electric signals में भेजता है. Basically you can convert one form of signal to another form of signal by using the transducer. एक device होता है transducer, ठीक है, transducer. So this device is used to convert the signal from one form to another form. So electrical signal में convert करके यहाँ पे भेजता है. फिर जैसे ही किसी बंदे का साउंड क्वालिटी के साथ वो इलेक्ट्रिक सिग्नल के साथ कांटेक्ट होता है, सो इट विल पिक द डाटा. जैसे ही यहाँ पे कांटेक्ट हुआ तो वो डाटा पिक करके वापस जाता है. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो इट विल go back to the satellite and they will recognize that some person who is having the voice quality just like this terrorist. तो ये लोग they will keep the eye on that place. तो इनके जो सीक्रेट एजेंट्स होते हैं, सीक्रेट एजेंट्स, से फॉर एग्जांपल द सीक्रेट एजेंट इज हैविंग द कहते हैं ना, उसका जो अवतार है ना, द अवतार लाइक बेगर. तो एक बेगर बन के घूम रहा है यहाँ पे गली में, इन दिस कॉलोनी. बट दिस पर्सन इज नॉट अ बेगर, but his form is completely like a beggar. You cannot recognize that beggar is a secret agent. So he will collect the data that some person is completely like Osama bin Laden terrorist is having presence there. तो ये बंदा information निकालता है. So he will take a satellite phone. So he will send the data here. From here again USA का कोई जो कहते हैं ना मिलिट्री थिएटर कमांड होता है ना, वहां पे भेजा जाता है. So there data is collected. Then they will tell the whole information to the US AF, US Air Force as well as US Army. तो उनको ये सारा इंफॉर्मेशन भेजते हैं. सो दे विल मेक अ प्लान हाउ टू किल दिस पर्सन. ठीक है, तो सीधा ये लोग जाके 24 कमांडोज लेके जाके हेलीकॉप्टर से उतारते हैं, जो कि बिल्कुल आवाज नहीं करते हैं, बिल्कुल कंप्लीटली साइलेंस. सो दे हैव चोजन द अपाची पर्सनल हेलीकॉप्टर. तो ये हेलीकॉप्टर लेके जाके वहां पे कमांडोज को उतार के इसको किल करते हैं और वापस आ जाते हैं नाइट में. उसको लेके उसका बॉडी लेके आ जाते हैं फ्रॉम द पाकिस्तान. See, these type of helicopters are having long range helicopters. Long range means it can travel for the long distances. You know what? उस टाइम में किसी को पता नहीं चलता. The terrorists have been killed. You can search it in the YouTube. Okay. So this is very क्या कहते हैं उसको, it is the amazing thing of the technology. तो टेक्नोलॉजी को इस तरह से यूज किया जाता है. Some people are living in the still stone age. They think that they can do anything.
Okay, leave it. It is very lengthy chapter, of discussion regarding these things. इसके बारे में अगर डिस्कस करते जाए ना, बहुत बड़ा है. I think you peoples have heard about these things or not, I don't know. ट्विन टावर्स, कितने लोगों ने ट्विन टावर्स के बारे में सुना है, बताओ मुझे. ट्विन टावर्स. सो मैंने जिस टेररिस्ट का नाम मैंने मेंशन किया था, उस बंदे ने इस ट्विन टावर्स को 2001 सितंबर 11 सितंबर 11 2001 में दो एयरक्राफ्ट लाके, ठीक है, दो एयरक्राफ्ट लाके ऐसे हिट करके दोनों को कोलैप्स किया था. इधर से एक एयरक्राफ्ट आया था, फिर इधर से एक एयरक्राफ्ट आया था, ठीक है. सो सिविलियन एयरक्राफ्ट, इसमें भी पैसेंजर्स थे, एंड इसमें तो बहुत ज्यादा लोग थे, somewhere around 2000 peoples. So all have been maximally, I think more than 1000 peoples have been killed here into these कोलैप्स ऑफ दीज बिल्डिंग्स. क्योंकि एयरक्राफ्ट से हिट करेगा तो पूरा आग लगेगा और ये कोलैप्स हो जाएगा. तो जो भी यहाँ पे ऊपर अटके हुए थे, all have been killed. So this was the first major terrorist attack in September 11 2001 when I was PUC first year student. तो मैं जब स्टूडेंट था तो मैंने ये चीज देखा था. At that time Americans said that this terrorist have been planned from the Afghanistan. We got amazed that and so terrorists have planned these all things. तो मैंने बोला था ना, लादेन. So this person have planned all these things. हम लोगों को मजाक लगता था कि यार इसने प्लान किया, अमेरिका को कैसे पता चला. It is because of technology and we don't have awareness about that technology. We were laughing like anything. We were saying that कि यार Americans are fools, dumb fellows. How come they know these things? Now I came to know that those are very intelligent fellows. And all intelligent scientists who are working in the NASA, 76% scientists of NASA are मैं इनको डम्ब बोल रहा था. These peoples are intelligent. Anyhow, passive sensors के बारे में बात किया मैंने. Now we are going to talk about active sensors. Okay. कितना इंटरेस्टिंग लगा ये स्टोरी, सारी चीजें थ्रिलिंग थी ये सारे स्टोरीज. Okay. Okay, my dear kids, if you have not seen Hollywood movies, let me discuss about technology which is pertaining to active sensors. ठीक है. This is 5-story building. ठीक है, 5 मौले का बिल्डिंग है. एंड दिस इज स्कूल. ये आपका स्कूल है समझ लो. एंड इमेजिन दैट टेररिस्ट हैव एंटर्ड दिस वन. तीसरे मौले में टेररिस्ट घुसे हुए हैं विद द गन्स ऑल दैट टू किल द चिल्ड्रन. छोटे छोटे बच्चों को मारना चाहते हैं. एंड all this is investigated by police officers and army men from the outside, because army men who are standing outside with the guns, they don't know that terrorists are in the 3rd story building. तीसरे स्टोरी बिल्डिंग में टेररिस्ट है, आर्मी वालों को पता नहीं. बट हाउ कम वी कैन हेल्प द आर्मी मैन? हम लोग तो नहीं कर सकते सर हेल्प, बिकॉज वी आर सिविलियंस. हम क्या करेंगे? हम गन उठाएंगे, हम बोलेंगे कि टेररिस्ट वहां पे. समझो अगर आर्मी मैन यहाँ पे चले गए और कहां से जा रहे हैं? यहाँ से जा रहे हैं. ओके. और else if they will go directly from here, army men, and terrorists are somewhere here at the second mole and they don't know, and army men are going in this direction और terrorist पीछे से आके इसको मार आर्मी वालों को मार दिया तो. So this is very high complicated operations of army. Okay, so now what I'm trying to say you peoples, मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? number of terrorists present inside the building कितने हैं? ये कैसे पता चलेगा सर? Because this is not glass building, this is cement slab building. सीमेंट का स्लैब बिल्डिंग है सर, आपको कैसा पता चलेगा? नहीं पता चलेगा. सो वी विल यूज एक्टिव सेंसर्स. तो फिल्मों में क्या यूज किया जाता है? एक डिवाइस यूज किया जाता है. दैट डिवाइस इज लाइक जस्ट लाइक रेक्टेंगुलर शेप. ठीक है, इधर दोनों तरफ होल्डर होता है ऐसे पकड़ने वाला.
तो उसको पकड़ के चिपकाते हैं दीवार पे। चिपकाने के बाद एक रूम में कितने लोग हैं, इट विल जस्ट स्कैन लाइक अ एक्सरे, ओके, बट दिस विल बी हैविंग रिस्क। सो एक आर्मी का सोल्जर मरना मतलब, यू नो व्हाट, it is a very big loss to the army, because they used to train him for 3 years. They used to invest time on that army personnel. So army is not only uh, that force which can which can allow the enemy to kill themselves. तो आर्मी वो फोर्स नहीं होती है जो सिर्फ शहीद होते हैं. आर्मी मेंस आर the personnel who protect us from the enemies. मेरी बात आपको समझ में आ रही है? So that is why army, first of all, before killing enemies, they have to protect themselves. अगर हमारी आर्मी बची रहेगी तभी एनिमीज को मार पाएगी, अगर हमारी आर्मी मरेगी तो एनिमीज को नहीं मार पाएगी. So the first duty of army personnel is to save himself and to kill enemies. They need to show bravery. क्या सर, आप ब्रेवरी के बारे में बात ही नहीं कर रहे हैं? आर्मी शुड हैव ब्रेवरी सर, दे शुड हैव ब्रेव हार्ट. Yes, that is true. That is the last option. That is the last option, my dear kids. Try to understand my point. उनकी जान बचाना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि 3 साल की मेहनत पूरा पानी में जाता है. 3 साल तक स्ट्रांगली उनको स्टुबोर्ड करना, एक स्ट्रांग आर्मी पर्सनल बनाना, फिर एकदम से अपने पागलपंती की वजह से, बिना दिमाग के सोचे समझे, they will go insist inside and all 3 years training have gone in vain. इससे भी डेंजरस क्या होता है पता है? 10 years का ट्रेनिंग होता है फॉर द आर्मी पर्सनल, एंड दोज विल बिकम NSGs. NSG क्या होता है? नेशनल सिक्योरिटी गार्ड्स. दीज आर द, यू नो, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स, लास्ट फोर्स ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. मींस पूरी जब आर्मी खत्म हो जाएगी, बस लड़ने के लिए ये लोग रहेंगे. एंड 1 NSG इज इक्वल्स टू समवेयर 100 आर्मी मैन. इतना इनका हाईली ट्रेन्ड एक ये होता है, क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर होता है. So if 1 NSG will get killed, it means that 100 army men have been killed. तो इसलिए टेक्नोलॉजी का लेना बहुत ही इंपॉर्टेंट है. एंड यू नो, these things will be used in films, and this is originally there, presently there. So ये क्या होता है सर? This will scan the whole room, number of persons कितने हैं यहाँ पे, फिर यहाँ पे जाके आप चिपकाओगे, यहाँ पे कितने लोग हैं पता चलेगा आपको, यहाँ पे जाके चिपकाओगे कितने लोग हैं पता चलेगा. मींस एवरी टाइम यू नीड टू गो एंड फिक्स टू द वॉल, उससे पता चलेगा. So whenever terrorist operations are making, anti-terrorist operations are making, this device is used. These are active sensors. But nowadays इसको छोड़ के हम लोग इसको satellites में use कर रहे हैं. Satellites, it will send the frequency. After hitting this frequency, it will scan the whole building. ये पूरे बिल्डिंग को स्कैन करता है. सर हाउ सर, ये कैसे? आई विल टेल यू हाउ. नाउ आई केम टू नो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू. नाउ यू केम टू नो माय डियर किड्स. पता नहीं कितने लोगों को ये चीज समझने में कॉम्प्लिकेट हो रहा है, बट दीज आर न्यू थिंग्स टू यू पीपल्स. मैं इसके ऊपर बहुत ज्यादा रिसर्च कर चुका हूं. यस, these are very much interesting, my dear kids. Now basically we are using polar satellites. ठीक है, तो these are the, देखो polar satellites हैं, active sensors. Again we are taking the help of satellites. So हम कोई भी आर्मी मैन किसी भी बिल्डिंग के नजदीक नहीं भेज रहे हैं, but we are using polar satellites, okay, which possesses their radiation to illuminate. देखो बच्चों ये क्या टर्म यूज कर रहे हैं? illuminate, to illuminate the objects. ठीक है. सो पैसिव सेंसर्स के लिए हमने एग्जांपल्स मैंने आपको नहीं बोला था, तो वी कैन यूज द फोटोग्राफिक कैमरास. ठीक है, फोटोग्राफिक कैमरास
as well as video cameras. बाकियों का उन्होंने डिस्क्रिप्शन नहीं दिया है. एक्टिव सेंसर्स के लिए यू नो व्हाट, बेसिकली रेडार एज वेल एज वो जो डिवाइस था ना, थर्मल इमेजिंग डिवाइस बोलते हैं इसको, थर्मल इमेजिंग डिवाइस. ठीक है, उन्होंने एग्जांपल नहीं दिया एक्टिव सेंसर्स के लिए, ओनली रेडार दे हैव सेड. ओके, एनी हाउ, इसमें भी ज्यादा कुछ नहीं दिया बिकॉज इन सिविलियन डोमेन वी कैन नॉट शो सच काइंड ऑफ थिंग्स. एनी हाउ, मैं आपको एक चीज बताता हूँ. हियर इज द सैटेलाइट्स. ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है. So this is also satellite. Now, terrorists are there somewhere. Say for example, this is a 20-story building. Okay, इसमें 20 माले हैं. Now terrorists are where we don't know. So with the gun, we don't know. Now, how can this satellite, polar satellite, can recognize sir कि इसमें कोई है? See here, their radiation means समझो कि कोई बंदा खड़ा है यहाँ पे with the gun. ठीक है, इसके अंदर जो गर्मी होती है ना, वो बाहर ऐसे निकलते रहती है एवरी टाइम फ्रॉम द ह्यूमन बींग्स. ठीक है, थर्म इज कमिंग आउटसाइड. सो दिस रेडिएशन इज कमिंग आउटसाइड. तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी है ना, ये एक्सरे की फ्रीक्वेंसी यहाँ पे जाके हिट करती है, और उसके साथ जब कांटेक्ट में आती है उस गर्मी के साथ, इट विल कम बैक टू द सैटेलाइट. इट विल कम बैक टू द सैटेलाइट, और एल्स यहां तक पहुंचने में डिफिकल्टी आ रही है. सो मोबाइल वैन ऑफ द इंटेलिजेंस एजेंसी यहाँ पे आके क्या करते, here is the receiver. So this heat is received here and it will send back to the satellite. So by that, this satellite will create the electric signal, and this electric signal send back the signal to this ground station, or else ground station somewhere here, यहाँ पे है कहीं पे. ठीक है, तो यहाँ पे भेज रहा है. तो इसमें ऐसा स्क्रीन रहता है, एंड हियर विल गेट द इमेज ऑफ दिस टेररिस्ट. इस टेररिस्ट का इमेज यहाँ पे आ जाता है कि कितने नंबर्स यहाँ पे पीपल्स हैं, दोज हु आर होल्डिंग द गन. बट you cannot see the faces of them. You can see the green images. Are you getting my point, my dear kids? Green images of these personnel. यहाँ पे civilians कितने हैं, normal peoples, and civilians कितने हैं, and terrorists कितने हैं, and the location, number of terrorists. In 12th mole 20 terrorists are there. In 8th mole 4 terrorists are there. तो what, बस इतने ही हैं, 24 terrorists. Say for example, you know what, helicopter will come of the commandos. That helicopter will be, designed very highly, uh, professionally designed helicopter, so it will make less noise. तो लेस नॉइज से क्या होता है, एक विंडो जहां पे टेररिस्ट नहीं है, तो उसके नजदीक जाके हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, तो इस विंडो को ब्रेक करके अंदर जाना होता है आर्मी मेंस को. So they will go inside and kill the terrorists, and this is all happens because of active sensors. Are you getting my point, my dear kids? Active sensors. Not only this, say for example, enemy aircrafts are coming into our territories. ठीक है, हमारे टेरिटरी के अंदर आया, ये enemy aircraft है. Okay, so this is enemy aircraft. Now here is the radar. ठीक है, ओवल शेप का रेडार है, और ये घूमता है, 360 घूमता है. ठीक है, क्यों घूमता है? whenever it is revolving, it will send the signal. ठीक है, so these electrical signal hit the aircraft and come back to the ground station of the radar. So इस सिग्नल से, जो इलेक्ट्रिक सिग्नल से जो मिलता है, उससे हम लोग क्या बनाते हैं, अ मींस इट विल इल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट. मतलब वो साइज कितना है, but we cannot recognize the size, we cannot recognize the structure of the aircraft, but we can recognize the size of the aircraft. Size of the aircraft होता है, by that you can come to know that कि ये वाला एयरक्राफ्ट सिविलियन एयरक्राफ्ट है,
and this aircraft is military aircraft. By seeing the speed of this aircraft, we will come to know that no, this is a jet aircraft, this is a supersonic aircraft. And uh, by knowing the direction of the aircraft, okay, it is coming from uh, west to north, means basically this is the Pakistani aircraft. No, this is moving from north to west, it means that this is Chinese aircraft. तो इसका जो पर आवर का जो स्पीड होता है ना, से फॉर एग्जांपल 2300 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से जा रहा है, by verifying the calculation of the speed, they will come to know that okay, this is probably JF-17 aircraft. ऐसे इंटेलिजेंस एजेंसियां कहते हैं ना, इट विल मेक क्या कहते हैं उसको, अंदाजा, दे विल पुट द प्रोबेबिलिटी साइंस दैट कि ये प्रोबेबिलिटी साइंस, probability science, and they will come to know that they will judge, कहते हैं ना अंदाजा लगाना, they will judge that this is JF-17 aircraft, and this is flying at 10 kilometer height. So तब यहाँ पे जो ग्राउंड स्टेशन पे सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं ना, सरफेस टू एयर मिसाइल्स मतलब सरफेस से एयर को जाके हिट करना, कोई एयरक्राफ्ट जा रहा है एनिमी एयरक्राफ्ट, उसको जाके हिट करना. एंड से फॉर एग्जांपल दे विल इन्फॉर्म द ग्राउंड स्टेशन ऑफ द इंडियन आर्म फोर्सेस. तो आकाश मिसाइल को एक्टिवेट किया जाता है, एंड द रेंज ऑफ दिस आकाश मिसाइल इज 35 किलोमीटर. तो ये तो 10 किलोमीटर के अंदर है, मतलब 25 किलोमीटर और ज्यादा जा सकता है. सो दे विल एक्टिवेट दीज मिसाइल्स, तो इसको जाके हिट करता है, फिर ये नीचे गिरता है. सो बाय दिस वे वी यूज द टेक्नोलॉजीज ऑफ एक्टिव सेंसर्स. तो मैंने रेडार के बारे में बेसिकली बात किया कि रेडार का यूज क्या है. रेडार्स आर बेसिकली एक्टिव सेंसर्स. थर्मल इमेजिंग डिवाइसेस, दोज आर एक्टिव सेंसर्स. बट एक्टिव सेंसर्स सैटेलाइट्स में भी यूज होते हैं. सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट सैटेलाइट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट पोलर सैटेलाइट्स. तो ग्राउंड स्टेशन वाला रडार अलग होता है, पोलर सैटेलाइट्स में भी रडार्स को फिट किया जाता है by using the sensors, so you can use it as a radar. So how you felt about polar satellites description, my dear kids? कैसा लगा? मूवीज में इससे भी कम दिखाते हैं. I studied more about these things. I told you more about more than movies. मुझे थोड़ा मतलब वर्ड्स नहीं मिल रहे थे उनको किस तरह से आपको बताना है. But I tried my level best because you know these are very complicated things. इसको बताना उतना easy नहीं होता है. इसको पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, लेकिन बताना very difficult than physics. Physics is easy, but this is very much difficult to explain all these things to you peoples. Anyhow, so shall we complete one derivation? क्या एक derivation को खत्म करते हैं? ओके चलो, ज्यादा हम लोग टेक्निकल और फिल्मी बन गए, अभी थोड़ा फिजिक्स वाले बनते हैं, ठीक है? ऑर्बिटल स्पीड ऑफ अर्थ सैटेलाइट्स. तो किसी भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट का कितना स्पीड होना चाहिए so that it should revolve into the orbit. So that is why they are saying that orbital speed of earth satellites. ठीक है, ये क्या है बेसिकली, इसका मीनिंग क्या है? इट इज द वेलोसिटी. वेलोसिटी मींस वी आर ट्रैकिंग डायरेक्शन एज वेल. मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन भी ट्रैक कर रहे हैं, ट्रेस भी करना पड़ेगा, ठीक है? वेलोसिटी ऑफ रेवोल्यूशन, it is the velocity of revolution of a satellite around earth in a given orbit. It is the velocity of revolution of a satellite
अराउंड अर्थ इन अ गिवन ऑर्बिट। ठीक है, तो मतलब कोई भी अगर सैटेलाइट अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है, सो विल ड्रॉ say for example this is your satellite। ठीक है, this is your satellite। ठीक है, ये आपका सैटेलाइट है। नाउ वी शुड ट्रेस द डायरेक्शन ऑल द टाइम। आप इसको सिर्फ स्पीड देके छोड़ नहीं सकते, अगर ज्यादा स्पीड दे दिया सो इट विल मूव अवे फ्रॉम द पाथ, सो यू नीड टू कंट्रोल द डायरेक्शन। ठीक है, एज वेल एज द स्पीड, मतलब मैग्नीट्यूड। तो दोनों को आपको क्या करना पड़ेगा, you should control both magnitude, speed as well as direction into a given orbit. So then only we can provide the orbital speed to earth satellites जो कि हमने artificial satellites बनाए हैं। It may be polar satellites or it may be geostationary satellites, दोनों के speeds को हमें control करना पड़ेगा। ठीक है, ओके। नाउ एक्सप्रेशन, हमें स्पीड कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं सर? एक्सप्रेशन फॉर orbital speed of earth satellite। ठीक है, now listen up my dear kids, so this is your earth surface। ठीक है, नहीं, थोड़ा सा डायग्राम को अच्छी तरह से डालते हैं, अर्थ को पूरा बनाते हैं। so this is your earth surface। ठीक है, and say for example this is your earth's orbit where satellite is revolving। ये आपका सैटेलाइट है। ठीक है, चलो, तो आपने क्या किया, यू आर पुटिंग द डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट टू अर्थ। ठीक है, फिर इसके साथ साथ आपका ये जो है ना, ये रेडियस है, तो रेडियस को थोड़ा सा अलग डायरेक्शन में डालते हैं सो दैट वी शुड वेरीफाई इट। ये आपका आर है, ये आपका एच है। ठीक है, एंड द डिस्टेंस फ्रॉम सैटेलाइट टू द अप टू द रेडियस, यहां से लेके यहां तक, इस डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं, इस डिस्टेंस को कहेंगे स्मॉल आर। ठीक है, चलो, नाउ इस फिगर से क्या पता चलता है, इन दिस फिगर, ठीक है, इन दिस फिगर we recognize that speed with direction is the orbital velocity, orbital velocity of satellite। ठीक है, which is carrying mass m। ठीक, now h is the height of the satellite, ये तो पता है हमें, height of the satellite। capital R is the radius of the earth। ठीक है, चलो ये भी पता चल गया। and what is a small r, it is the distance between satellite and the center of the earth। is that clear, is that clear my dear kids? ये चीज पता चल गया। चलो अभी डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इसको थोड़ा सा रब कर लेते हैं। now one thing I want to tell you my dear kids, if the satellite is in the orbit which is revolving around the earth, अगर अर्थ के इर्द गिर्द घूम रहा है कोई सैटेलाइट, it is because of what, it is because of centripetal force, and that centripetal force is provided to the satellite by the center of the earth, it is because of gravitational force। तो gravitational force किसको इक्वल होता है, सेंट्रिपिटल फोर्स को इक्वल होता है। ठीक है, मतलब क्या कहना चाह रहा हूं मैं, Fc is equals to Fg। क्या मैं ये चीज कह सकता हूं, centripetal force presence is shown by the earth, it is because of gravitational force।
ठीक है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स का जो फॉर्मूला है वो क्या है बताओ, mv²/r। सिंस इट इज रिवॉल्विंग इनटू द ऑर्बिट, ये क्या बन गया, ऑर्बिटल ऑर्बिटल वेलोसिटी बन गया या ऑर्बिटल स्पीड कह लो। ठीक है, नाउ व्हाट इज एफ जी, एफ जी क्या है बताओ मुझे, एफ जी इज नथिंग बट कैपिटल जी कैपिटल एम स्मॉल m डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। व्हाट इज स्मॉल r, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन सैटेलाइट एज वेल एज सेंटर ऑफ द अर्थ। चलो ठीक है, so you can put the value of these two, mv²/r is equals to capital G capital M divide capital M small m divided by r square। is this clear my dear kids, क्या चीज क्लियर है, क्या मैं r और r को कैंसिल कर सकता हूं, ओके okay. क्या मैं स्मॉल m और स्मॉल m को कैंसिल कर सकता हूं, ओके okay. this is right, so v naught square is equals to capital G capital M small divided by small r। now what is a small r, small r is nothing but capital R plus capital H, small r is nothing but capital R plus small h, so you can write v naught square is equals to capital G capital M divided by R plus h। so what this implicates, ये implicate क्या करता है, ठीक है, ये तो आपका given था, ठीक है। now this implicates you know what, v naught is equals to under root gm divided by R plus h, ठीक है। so this is clear, very much clear, क्या ये clear हो गया बच्चों। now let me tell you one thing, where if the height, if the height is very much smaller than the radius of the earth, ठीक है, than the radius of the earth से बहुत ही छोटा है, समझो कि रेडियस कितना है अर्थ का, दिस इज 6400 किलोमीटर, ठीक है, और हाइट कितना है पोलर सैटेलाइट्स का 500 किलोमीटर टू 800 किलोमीटर, मान के चलो इसको छोड़ दो, इसको 500 किलोमीटर मींस वेरी मच स्मॉलर, सो यू कैन निग्लेक्ट दिस, एच को हम लोग क्या कर सकते हैं, निग्लेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इफ यू आर निग्लेक्टिंग दिस, हाउ यू कैन राइट दिस फॉर्मूला, v naught is equals to, v naught is equals to अंडर रूट कैपिटल जी m डिवाइडेड बाय r, इतना लिख सकते हैं बच्चों, कैन वी राइट लाइक दिस, v naught is equals to अंडर रूट, ये बड़ा वाला v नहीं है, ठीक है, छोटा वाला v है, बड़ा वाला v मींस वॉल्यूम, छोटा वाला v मींस स्पीड, so can we write like this, ऐसा लिख सकते हैं सर, yes, so I'm going to modify this equation, कैसे, ऐसे r into r into r, ठीक है। so what is this sir, you can see here my dear kids, gm divided by r square into r, so small g is equals to gm divided by r square, ये सबको पता है, ठीक है, so you can modify this small g into capital R, so this is v naught, this is the expression for orbital speed, यही हमारा एक्सप्रेशन है, स्पीड ऑफ अर्थ सैटेलाइट, अर्थ के सैटेलाइट का कितना स्पीड होना चाहिए, ठीक है, यू पुट द वैल्यू स्मॉल जी इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड आर इज इक्वल्स टू 6400 इंटू 10⁻³ मीटर, तो ये दोनों को वैल्यू डालिए आप, you just put the value of these things and make the root of this, so you will get the orbital speed of the satellite, कितना मीटर पर सेकंड से जाना चाहिए, ओके, आई विल टेल यू दैट, मैं कैलकुलेट करके आपको बताता हूँ, see here, so you are going to make the 10⁻⁴ means so 6400 into 10⁻⁴, तो इसका रूट बनाइए कितना होता है, देखो this will become 10⁻², और 6400 का कितना हो रहा है, रूट ऑफ 6400 कितना हुआ, 80 हुआ, ठीक है, 80 इंटू 10 स्क्वायर मीन्स 100, 80 इंटू 100 कितना हुआ, 8000 मीटर पर सेकेंड, ओके, लिसन अप माय डियर किड्स, if if your speed, if your speed is 8 into 1000 meter
पर सेकेंड। इसका कैसे लिख सकते हो आप? 8 किलोमीटर पर सेकेंड स्पीड से आप अगर सैटेलाइट को घुमा रहे हो, मींस दैट सैटेलाइट विल बी गोइंग टू बी इन द ऑर्बिट ऑफ द अर्थ। इसका स्पीड कितना होना चाहिए? 8 किलोमीटर पर सेकेंड। आप अगर इसको 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड के स्पीड से ऑर्बिट करवाते हो, दैट सैटेलाइट विल बी गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सो ये जो स्पीड होता है इसको कहते हैं हम लोग एस्केप स्पीड, और ये जो है ना इसको ऑर्बिटल स्पीड कहते हैं। इज दैट क्लियर माय डियर किड्स? So by this way we will calculate the speed of the satellites which can keep that satellite into the orbit of the earth. हर planet का जो satellite revolve करता है around it will be different. The speed will be different for every different planets. ठीक है? So for the earth it is 8 kilometer per second. This is orbital speed, orbital velocity. To get the escape from the gravitational force of the earth, you need to run with the 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। अगर आप इतने तेजी से दौड़ते हो, so you can escape the earth's gravity. That is called escape velocity, escape speed. Is this clear my dear kids? Okay, thank you for listening patiently my dear kids. तो आप अभी तक तो हमने पोलर सैटेलाइट्स देखा, as well as orbital speed देखा, and expression for orbital speeds of earth satellites भी देखा. So we came to know about active sensors as well as passive sensors, टेक्नोलॉजी के बारे में समझा, and many more things, new things, right? Anyhow, thanks for listening patiently. So we'll see tomorrow, we'll meet tomorrow in the next class. This is lecture 7 completion. Bye bye. Jai Hind.